Hello friends, I am Shalabh Jain. As you know, the series of Flamingo chapters is going on, and in that series today we will cover the chapter Poets and the Pancakes. This is little bit lengthy chapter, but I will focus the main points so that rather than going through the complete chapter word to word, you could focus only the main points which are relevant from the examination point of view. Secondly, it will save your time. So let's discuss first of all the themes of the story. The story has multiple themes. First of all, we will discuss about the themes. The first theme of the chapter is satire on film industry and bureaucracy. In this chapter, which has been written by Ashoka Mitra, he has highlighted, he has taunt, he has criticized film industry and bureaucracy. The story humorously criticizes the film industry's chaotic system. As you know, the meaning of chaotic is mismanaged. मीन्स फिल्म इंडस्ट्री में सब कुछ बड़ा ग्लॉसी बड़ा डेजलिंग दिखता है, बट इफ़ यू पीप इनसाइड दिस इंडस्ट्री यू विल फाइंड एवरीथिंग इज मैसी. Inefficiency you will come to know. Nobody is perfect over there, and overstaffed departments means unnecessarily so many employees have been stuffed over there, exposing the lack of true creativity behind the glamorous facade. In in short, in this story, you will come to know the department which must be full of creativity. Actually, it has lack of creativity. Glamorous facade means the glamorous curtain. Outer world of film industry is full of glamour. It is a dazzling world, but actually the hind side is very dark. Second theme of the story is clash of cultures, east versus west. In this story you will come to know visit of English poet Stephen Spender. In the other part of the story we will discuss about the same point. Stephen Spender had visited Gemini studio, and it highlights cultural and intellectual differences. Of course, even today also you can find a wide gap in Indian film industry and Western film industry, or you can say Hollywood versus Bollywood. Indian film workers fail to connect with Western literary ideologies and expressions. कहीं ना कहीं आज भी ये चीज़ हमें नज़र आती है. द इंडियन फिल्म्स आर नॉट अप टू द लेवल वेयर वेस्टर्न वर्ल्ड हैज़ रीच्ड. द पिनेकल्स, द हाइट्स विच वेस्टर्न वर्ल्ड हैज़ टच्ड, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज स्टिल very much far away from that height. The next theme of the story is irony of intellectualism in a non-intellectual environment. Despite being filled with poets and writers, Gemini Studios offered no real platform for creativity. It means it was a world of hypocrisy. There was no requirement of creativity, just you must be from a high section of society or upper community, making their presence ironic and purposeless in a commercial setting. It means the entire gamut, entire world of film industry is nothing but commercial. आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है, नो प्रॉब्लम, जस्ट यू मस्ट हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी or good resources, then you will definitely be settled down in this industry. And if you do not have both the things, despite having creativity, despite having knowledge, you will not be considered. Politics in creative space, ये तो आज भी होता है, आप जानते हैं. आज भी जो क्रिएटिव वर्ल्ड है वहाँ पॉलिटिक्स है, चाहे वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है या कोई भी सेक्शन है सोसाइटी का, वहाँ पॉलिटिक्स इस कदर इस
तरह इस लेवल तक एनक्रोच कर चुकी है कि जो रियल क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड है वो हैम्पर होने लगा है, क्योंकि जहाँ पॉलिटिक्स होगी वहाँ क्रिएटिविटी सर्वाइव नहीं कर सकती. यू विल हैव टू डांस ऑन द ट्यून ऑफ द पॉलिटिशियंस, यू विल बी जस्ट ए रबर स्टैम्प. So political ideologies, especially anti-capitalist sentiment, heavily influenced the studio atmosphere. People were against the world of capitalism. The poets of the Gemini studios were against the world of capitalism. अगर आपके माइंड में सोसाइटी के किसी एक सेक्शन के लिए नेगेटिव फीलिंग्स हैं तो इससे क्या होगा? स्टाइफलिंग अपॉन ओपन डिस्कशन. You will not be able to discuss openly about any subject क्योंकि you are prejudiced. I am not advocating capitalism, but if you are discussing about a topic, so you must be open-minded rather than being prejudiced. The people of Gemini Studio were prejudiced. According to them, the people who are capitalist, the people who are very, very rich, they are antisocial, they are not genuine or generous people. To misplace suspicious and confusion. अगर हम डिस्कशन के लिए बैठे हुए हैं और मेरा माइंड ऑलरेडी प्रेजुडिस्ड है, आई विल नॉट लिसन योर व्यूज विद ओपन माइंड, आई विल लिसन योर व्यूज विद प्रेजुडिस्ड माइंड. तो ये एक वहाँ प्रॉब्लम थी. दिस इल्यूजनमेंट विद ग्लैमर, एंड ड्यूरिंग द लास्ट सेक्शन ऑफ द स्टोरी you will come to know how the writer Ashoka Mitra disillusioned with the world which was full of glamour. जैसे आज भी होता है ना, बहुत सारे यूथ हैं, बहुत सारे एडल्ट्स हैं, बहुत सारे मिडिल एज हैं, बहुत सारे ओल्ड एज पीपल भी हैं जिनको फिल्म इंडस्ट्री एक ग्लैमरस वर्ल्ड लगता है. उनको लगता है ये पैसे की दुनिया है, नाम शोहरत की दुनिया है. स्टिल दे आर हाईली ग्लैमराइज्ड बाय दिस वर्ल्ड. लेकिन जब आप इस वर्ल्ड के अंदर एंट्री लेते हैं, व्हेन यू एंटर दिस वर्ल्ड, देन यू रियलाइज हाउ डर्टी दिस वर्ल्ड इज. कितनी पॉलिटिक्स है यहाँ पर, कितनी पार्शियलिटी है, कितना एक्सप्लॉयटेशन है एंड कितना एक्सर्शन है. तो फ्रॉम ए फार एंड वी फील दिस इज ए डेजलिंग वर्ल्ड फुल ऑफ गोल्ड, बट एक्चुअली it is nothing but a hypocrite world full of hypocrisy, full of prejudice and full of exploitation. So these are few themes of this chapter. आपके एग्जाम में कोई भी पॉइंट डिस्कस वो कर सकते हैं आपसे. तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ. फर्स्ट ऑफ ऑल, पोएट एंड पैनकेक्स. पोएट एंड पैनकेक्स, अब ये दो डिफरेंट टर्म्स कैसे हो गई? Poet, as you know, the people who are creative, they compose songs, they write stories, they create dialogues. What is pancake? आपके माइंड में पैनकेक का नाम सुन करके एक ईटिंग मटेरियल आएगा, क्योंकि पैनकेक एक ईटिंग मटेरियल है. बट ड्यूरिंग दोज डेज व्हेन जेमिनी स्टूडियो वाज सेट अप, पैनकेक यूज टू बी अ मेकअप मटेरियल. आज तो मॉडर्न वर्ल्ड है, बहुत सारे मेकअप मटेरियल्स अवेलेबल है मार्केट में, बट ड्यूरिंग दोज डेज ओनली वन मेकअप मटेरियल वाज अवेलेबल एंड दैट वाज पैनकेक. आप बुक से पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो ट्रक लोड ऑफ पैनकेक यूज टू बी कॉल्ड, यूज टू बी बॉट फॉर मेकअप डिपार्टमेंट. सोचिए कितना मेकअप यूज होता होगा. और ये तो आपको पता ही है कि ड्यूरिंग एनी शूटिंग एंड इन द फिल्म इंडस्ट्री जो मेकअप है दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट. हैवी मेकअप मेक्स यू प्रेजेंटेबल. एक्चुअली यू लुक वेरी हाइडस अगली, बट योर मेकअप इज रिक्वायर्ड डिस्पाइट यू लुक अगली. मेकअप करने के बाद आप अगली लगते हैं, बदसूरत लगते हैं अगर बहुत ज़्यादा मेकअप हो, बट इट मेक्स यू प्रेजेंटेबल बिफोर द कैमरा. तो इसीलिए यहाँ पर नाम रखा गया पोएट एंड पैनकेक्स. इट इज़ ए ह्यूमरस एंड सैटिरिकल अकाउंट ऑफ अशोका मित्रा. द राइटर अशोका मित्रा हैज़ कट sarcasm, taunt about the
film industry and its internal conflicts. So whatever Ashoka Mitra experienced at Gemini Studios, a famous film studio in Chennai, ये बात है ड्यूरिंग 1940s और 1950s की. उस टाइम जेमिनी स्टूडियोज़ बहुत ज़्यादा फेमस था. एवरीबडी वांटेड टू वर्क अंडर द बैनर ऑफ जेमिनी स्टूडियो. इट ऑफर्स इंसाइट इनटू द वर्किंग कल्चर, एक्सेंट्रिक कैरेक्टर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर इन द फिल्म इंडस्ट्री. देखिए, फिल्म इंडस्ट्री इज एक्चुअली मिरर ऑफ सोसाइटी. जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़ है, ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री है. दे मस्ट बी अनबायस्ड, दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस. अगर फिल्म्स, न्यूज़ चैनल्स, ऐसी चीज़ें पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस में होंगी तो वी विल बी शोन ए रॉन्ग पिक्चर. जबकि इनका टारगेट होना चाहिए कि हमें राइट पिक्चर शो करें सोसाइटी की. द सेम सिचुएशन हैज़ बीन हाईलाइटेड इन द स्टोरी. So Gemini Studios, a famous film studio in Madras, which is today is Chennai, known for producing films for simple average people during 1940s and 1950s. The movies, the films which used to be produced at Gemini Studios, they used to be average and belong to life of common people. और वैसे भी 1940s 50s का टाइम जो था बड़ा सिंपल टाइम था लोगों के लिए. इट वाज नॉट फुल ऑफ रिचनेस. आज हम डेजलिंग वर्ल्ड में रहते हैं, फुल ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी. लेकिन ड्यूरिंग दोज डेज द लाइफ ऑफ पीपल वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड. दे वाज फार अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ग्लैमर, एनी काइंड ऑफ हिपोक्रेसी, एनी काइंड ऑफ लग्जरी और कंफर्ट. So the same type of movies used to be there. Had departments, लेकिन इतना ओल्ड होने के बावजूद भी, डिस्पाइट बीइंग सो ओल्ड, जेमिनी स्टूडियो हैड मेकअप डिपार्टमेंट, स्टोरी राइटिंग डिपार्टमेंट, एडिटिंग डिपार्टमेंट एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट. अब हम बात करते हैं पैनकेक की, विच वाज ए मेकअप ब्रांड imported from the west. It means pancake used to be imported from the west. It was not product of India. Used extensively to make actors look presentable on screen. बुक में आपके साफ लिखा हुआ है, pancake was used to make actor and actress ugly, but that ugliness made them presentable on the screen. जैसे अभी आपको मैंने बताया, जितना ज़्यादा मेकअप उतना ज़्यादा आप प्रेजेंटेबल. लेकिन इन रियलिटी इफ़ एनीबडी सीज यू, ही और शी विल फील टेरिफाइड, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेकअप से आपके फेस की जो रियलिटी है वो हाइडुअस हो जाती है, अगली हो जाती है. मेकअप रूम स्मेल्ड बैड एंड हैड पुअर वेंटिलेशन. अब ये वो टाइम तो था नहीं जब एयर कंडीशंस हुआ करते थे. 1940s में, 1950s में the life of people was very much simple. The life of people was very much down to earth. अब सोचिए, एक रूम है विच इज़ फुल ऑफ डेजलिंग लाइट्स, शार्प लाइट्स, और मेकअप के अंदर केमिकल होता है. जो मेकअप मटेरियल होता है उसमें केमिकल्स होते हैं. व्हेन एक्टर और एक्ट्रेस हैड टू अंडरगो मेकअप, यू कैन इमेजिन देयर मेंटल एंड फिजिकल मिजरी, क्योंकि बहुत डेजलिंग लाइट आ रही है. सो मैनी मिरर्स आर ओवर देयर इन द रूम. कमरे में बहुत सारे मिरर्स लगे हुए हैं जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है. कोई एसी नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, और शायद उस टाइम पर कोई फैन वगैरह की भी फैसिलिटी नहीं थी. तो द एक्टर और एक्ट्रेस हैड टू अंडरगो फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग, बिकॉज एक तो मेकअप और ऊपर से गर्मी. The narrator, कौन है नरेटर? अशोका मित्रा, humorously describe it as a place where faces were burnt daily. Faces were burnt daily, और actor और actresses were made ugly every day to make them beautiful. That is a sarcasm. कि उनको बदसूरत बनाया जाता था ताकि खूबसूरत दिखाया जा सके. That is a kind of irony. एग्जाम में आपके पॉइंट आ सकता है, हायरार्की इन मेकअप डिपार्टमेंट.
ये तो आपको मालूम ही है कि हायरार्की क्या होती है. Just like in ancient India, there used to be hierarchy. The king always gave his power to his children, to his son. The son gave his power to his own son. That means hierarchy kept going on. In the same manner, in Gemini studio also there was a hierarchy. Headed by a boss, a Bengali. The boss of Gemini studio was Bengali, followed by assistant from various parts of India. आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हाउ कैन यू से जेमिनी स्टूडियो वॉज ए सोर्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिएगा. हाउ कैन यू से जेमिनी स्टूडियो वॉज ए सोर्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. वाई वॉज जेमिनी स्टूडियो सोर्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन? बिकॉज अंडर द सेम रूफ people from multiple states of India worked together. चाहे वो कन्नड़ से हो, चाहे वो चेन्नई से हो, चाहे वो धारवाड़ से हो, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, चाहे वो बंगाल से हो, people from different states worked under the same roof. That's why Gemini Studio was a source of national integration, means source of unity. दे वर्कड इन ए स्ट्रिक्ट ऑर्डर. अब यहाँ पर हायरार्की क्या थी? जो सीनियर एक्टर्स थे, आपको तो मालूम है फिल्म इंडस्ट्री में मेन और लीड एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं, फिर उनके असिस्टेंट्स होते हैं जो नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट लेकिन वो भी एक्टर एक्ट्रेस है, फिर मेन कॉमेडियन है, फिर और भी बहुत सारे लोग हैं. द लीडिंग एक्टर और एक्ट्रेस, द मेन एक्टर और एक्ट्रेस वर मेड अप बाय सीनियर मेकअप मैन. सीनियर मेकअप मैन किसका मेकअप करेगा? सीनियर एक्टर और एक्ट्रेस का. जो सीनियर एक्टर है उसके बाद जो जूनियर एक्टर्स हैं उनका मेकअप कौन करेगा? जो सीनियर मेकअप आर्टिस्ट है उससे जो जूनियर है वो करेगा. उसके नीचे वाले लेवल का वो कॉमेडियन का. अब कई बार मूवीज़ में क्राउड सीन भी होता है, उसका मेकअप कौन करेगा? उसका मेकअप करता था ऑफिस बॉय. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ऑफिस बॉय. अब उसको बॉय क्यों कहा गया? ही वॉज ए मैन ऑफ एज ऑफ 40 बट ही वॉज कॉल्ड ऑफिस बॉय बिकॉज वेन ही हैड जॉइंड जेमिनी स्टूडियो expecting to become an actor, expecting to become a story writer, expecting to become a big gun in the film industry. उसे कोई काम नहीं मिला सिवाय एक छोटे मोटे काम के, चाय पिलाना, पानी पिलाना, साफ करना, सफाई करना. तो when he had joined he was just 16-year-old and he used to do the petty jobs of the office. और तब से उसको कहा गया ऑफिस बॉय. विद द पैसेज ऑफ टाइम हिज एज केप्ट इंक्रीजिंग, लेकिन टैग वही पड़ गया ऑफिस बॉय. तो ऑफिस बॉय का काम यहाँ पर क्या है? क्राउड का मेकअप करना. जब कभी भी किसी मूवी में भीड़ यानी कि क्राउड का सीन चाहिए होता था तो इट वाज जॉब ऑफ ऑफिस बॉय टू डू द मेकअप ऑफ क्राउड. वो क्या करता था? सबको लाइन में खड़ा कर देता था, एक हाथ इधर से लिया मेकअप का लगाता हुआ चला गया, एक हाथ उधर से लगाता हुआ चला गया. क्योंकि क्राउड हैज़ नो वैल्यू एज यू नो. क्योंकि जब भी हम मूवी देखते हैं तो वी डू नॉट फोकस ऑन क्राउड, वी फोकस ऑन द मेन एक्टर और मेन एक्ट्रेस. अब इसमें राइटर का क्या रोल था? राइटर कौन है हमारा? अशोका मित्रा, और नरेटर भी वही है. द नरेटर वॉज पार्ट ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट. हिज जॉब वॉज क्लरिकल एंड नॉट ट्रूली क्रिएटिव. वो क्या करता था? उसको एक छोटा सा क्यूबिकल रूम दिया हुआ था, में बैठ करके वो न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स निकाल करके कहीं कहीं पेस्ट करता था. एवरीबडी थॉट ही डिड यूजलेस जॉब, ही डिड नथिंग. उसका काम कुछ नहीं है. शेयर्ड एन ऑफिस विद अदर स्क्रिप्ट राइटर्स एंड पोइट्स. कोई भी उसके ऑफिस में कभी भी घुस जाता था क्योंकि सबको क्या लगता था ये कुछ नहीं करता, बेकार का काम है. एक्टर्स एंड ऑफिस लाइफ. Many aspiring poets and writers joined Gemini Studios.
ये तो आपको मालूम ही है, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर कोई जाना चाहता है। पता नहीं कितने ही एक्टर्स, कितने ही राइटर्स, कितने ही पोएट्स यहाँ डेली आते हैं, डेली चले जाते हैं। तो उन्होंने भी जेमिनी स्टूडियो ज्वाइन किया इस उम्मीद से क्रिएटिव फ्रीडम, बट एंडेड अप डूइंग क्लरिकल और मीनियल टास्क। यहाँ पर मीनियल का मतलब क्या है? पेटी जॉब। यहाँ पर अभी मैंने किसकी बात की थी? ऑफिस बॉय की। When office boy, who is now man of 40, but he got tag of office boy when he had joined Gemini Studio, he had also entered in this celluloid world. फिल्म इंडस्ट्री को सेल्यूलॉइड वर्ल्ड भी कहते हैं। विद हाई होप्स, विद बिग ड्रीम्स। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? वो पेटी और मीनियल जॉब्स के लिए रह गया, छोटे मोटे कामों के लिए, चाहे पानी, साफ सफाई, ये वो बस। अब हुआ क्या? विजिट ऑफ एन इंग्लिश मैन, एन अननोन पोइट। एक बार क्या हुआ, जेमिनी स्टूडियो में बड़ा शोर मचा कि एक इंग्लिशमैन जिसका नाम था स्टीफन स्पेंडर, ही वॉज इन्वाइटेड टू स्पीक टू द स्टाफ। लोगों में बड़ा एक्साइटमेंट आया। अब नाम तो सुने हुए थे बड़े बड़े, लेकिन स्टीफन स्पेंडर कौन है ये किसी ने नहीं सुना था। जो नाम फेमस थे वो तो उनको मालूम थे, बट ड्यूरिंग दोज डेज स्टीफन स्पेंडर वाज नॉट ए नॉन फिगर। उनको लगा कोई प्रोमिनेंट पर्सन होगा, चलो सुन लेते हैं। एग्जाम में अगला क्वेश्चन सुन लीजिए क्या आएगा। हाउ वॉज विजिट ऑफ स्टीफन स्पेंडर और हाउ वॉज विजिट ऑफ इंग्लिश पोएट इन जेमिनी स्टूडियो अ मिस्ट्री। स्टीफन स्पेंडर का जेमिनी स्टूडियो में आना एक मिस्ट्री क्यों रहा? वो मिस्ट्री इसलिए रहा बिकॉज नंबर वन, ही वॉज एन अननोन फिगर और पर्सनैलिटी। नंबर टू, बैरियर ऑफ लैंग्वेज। क्या मतलब? हिज लेक्चर वॉज मिसअंडरस्टूड एंड डल ड्यू टू द ऑडियंस लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ड्यूरिंग 1940s 1950s people were not so much inclined with English language। और जो स्टीफन स्पेंडर था, ही वॉज एन इंग्लिश मैन, इसीलिए जो उसका लेक्चर था प्योर इंग्लिश में था। किसी को समझ ही नहीं आया उसने बोला क्या, एक्सेप्ट फ्यू वर्ड्स लाइक कैपिटलिज्म एंड ऑल। तो वाई हैड ही कम, व्हाट डिड ही से एंड वाई डिड ही गो? इट वॉज टोटली ए मिस्ट्री फॉर द पीपल ऑफ जेमिनी स्टूडियो। किसी को समझ ही नहीं आया कि वो आया क्यों, बोला क्या, और पर्पस क्या था आने का। तो दैट्स वाई द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ स्टीफन स्पेंडर वॉज ए मिस्ट्री। Communist influence. The studio staff leaned left ideologically. There was suspicion of anything capitalist or pro-West. अब ये कम्युनिस्ट कौन होते हैं? Communists are those people who vote, who favor a specific community, a specific idea, a specific ideology. जेमिनी स्टूडियो के जो पोएट्स थे, जो राइटर्स थे, दे वर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट कम्युनिस्ट। वो क्या मानते थे? कम्युनिस्ट आर हार्टलेस पीपल एंड दे आर सो मच सेल्फिश दैट दे डू नॉट हेजिटेट टू इवन किल देयर फैमिली फॉर देयर ओन बेनिफिट। इट मीन्स द पीपल ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैड वेरी नेगेटिव व्यूज अबाउट कम्युनिस्ट। इसीलिए वो हमेशा कम्युनिज्म को एक खतरा मानते थे, एक डेंजर मानते थे, एक रफ सिचुएशन मानते थे। दे नेवर एडवोकेट, दे नेवर फेवर कम्युनिज्म। आयरॉनिकली दे मिसअंडरस्टूड बोथ कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। ना उन्हें कैपिटलिज्म के बारे में मालूम था, ना कम्युनिज्म के बारे में मालूम था। और ये तो आपको मालूम है, जब हमें हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन हो किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी सिचुएशन की, दैट इज़ डेंजरस। उस टाइम पर भी यही था जो किसी, और आज भी यही है कहीं ना कहीं। टुडे वी आर सो मच लोडेड विद इंफॉर्मेशन वाया सो मैनी चैनल्स कि आज हम खुद कंफ्यूज्ड हैं। किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को उठा लें आप, उस टॉपिक को लेकर के इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतने सारे पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि हमें ये समझ नहीं आता कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और फिर हम अपना एक खुद व्यू पॉइंट बना लेते हैं। कई बार वो सही हो सकता है और कई बार वो गलत भी हो सकता है।
इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, लीगल एडवाइजर. देयर वॉज ए लीगल एडवाइजर इन जेमिनी स्टूडियो. हाउ डिड लीगल एडवाइजर कॉज एंड ऑफ करियर ऑफ ए प्रोफिशिएंट एक्ट्रेस? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा. हाउ डिड द लॉयर become cause of ending of a career of a proficient actress? हुआ क्या, जेमिनी स्टूडियो में आपको तो मालूम है कि स्टोरी डिपार्टमेंट में लॉयर को आना बहुत ज़रूरी है. सपोज यू आर ड्राफ्टिंग ए स्टोरी और उसमें कुछ लीगल ग्लिचेस हैं, कुछ लीगल पॉइंट्स हैं. अगर आपने मूवी को टेलीकास्ट कर दिया तो ए स्पेशल कम्युनिटी, स्पेसिफिक कास्ट में रेज ऑब्जेक्शन अबाउट दैट. तो इसीलिए लॉयर की ज़रूरत होती है, सो दैट ही कुड सी द स्टोरी फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट. और उसमें अगर कोई चीज़ एलिमिनेट करने वाली है तो वो वर्ड, वो लैंग्वेज, वो लाइन या वो जार्गन्स हटा दिए जाए. इट मीन्स द वर्क ऑफ लॉयर इन जेमिनी स्टूडियो वाज सेम. हुआ क्या, वन डे वन ऑफ द एक्ट्रेस इन जेमिनी स्टूडियो वॉज फ्यूमिंग विद रेज. किसी बात पर नाराज होगी वो, एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग लाउडली. शी हैड ब्लास्टेड. अब लीगल एडवाइजर का काम क्या है या लॉयर का काम क्या है? टू कलेक्ट द फैक्ट्स. when the actress was fuming with rage and she was barking, she was shouting loudly, he switched on the tape recorder. सबूत इकट्ठा करना है ना उसको. he was a legal advisor. तो जब तक लीगल एडवाइजर के पास या लॉयर के पास एविडेंस नहीं होगा, ही वॉन्ट बी एबल टू प्रूव हिज और हर व्यू पॉइंट. उसने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया. अब आपको तो मालूम है, व्हेन यू आर इन फिट ऑफ रेज, जब इंसान गुस्से में होता है तो वो कुछ भी बोल सकता है. उसको नहीं मालूम होता कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, गलत है, एथिकल है, नॉन एथिकल है, रीजनेबल है, अनरीजनेबल है. वो बोलता चला जाता है इन द फ्लो. In the same manner, the actress kept shouting whatever she wanted to say or she did not want to actually say. Finally, when she settled down, when she calmed down, now the lawyer switched on the tape recorder. And when she heard her own voice in fit of rage, she felt very much embarrassed and she had to lose her job because lawyer had shown her द रियलिटी. अब उसकी आवाज़ सबने सुनी और हो सकता है कि इन फिट ऑफ रेज वो डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, पता नहीं किसी को क्या क्या कह रही हो. जब सबने सुना तो नेचुरली शी कुड नॉट स्टे इन जेमिनी स्टूडियो. इट मीन्स द लीगल एडवाइजर कॉस्ट जॉब ऑफ द एक्ट्रेस. और इसमें एक पॉइंट और भी है बहुत इंपॉर्टेंट. हाउ डिड द लॉयर कॉस्ट द क्लोजिंग ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट और कॉज द क्लोजिंग ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट? एक बार लीगल एडवाइजर के मन में आया कि क्यों ना मैं भी मूवी बनाऊं. ये तो आपने देखा ही है, आज फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी हर कोई एक अपनी मूवी बना रहा है. क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट लिविंग इन एन इंडस्ट्री तो यू कम टू नो द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ दैट इंडस्ट्री. लीगल एडवाइजर मेड अ मूवी. उसने मूवी बनाई एंड ऑब्वियसली इट वाज गोइंग टू बी फ्लॉप, और वो फ्लॉप रही. एंड अल्टीमेटली द head of the department, the head of Gemini Studio, Mr. S.S. Vasan, decided to close the story department. ये वो डिपार्टमेंट था जहाँ दिन में 24 घंटे आप कॉफ़ी पी सकते थे, क्योंकि वहाँ पर पोएट्स, राइटर्स, दे केप्ट डिस्कसिंग द थीम ऑफ द मूवी, स्टोरीज दे केप्ट डिस्कसिंग. उनको चाहिए थी एक पीसफुल प्लेस. और अब ये बंद हो चुकी है किसकी वजह से? लॉयर की वजह से. So in the history it had happened first time because of lawyer the poets lost their job. ये आपके एग्जाम का अगला क्वेश्चन आ सकता है. Now हमने एक पॉइंट अभी पढ़ा था कि arrival of an Englishman was a mystery for the people of Gemini Studio. क्यों? क्योंकि स्टीफन स्पेंडर was an unknown figure for the people of Gemini Studio and they had never heard his name. So Ashoka Mitra, the writer of the story, he also had not much information about this man. जैसे बाकियों के लिए स्टीफन स्पेंडर एक मिस्ट्री था, वैसे अशोका मित्रा के लिए भी था. लेकिन आफ्टर फ्यू डेज क्या हुआ? ईयर्स लेटर
द नरेटर डिस्कवर्ड, नरेटर कौन है? अशोका मित्रा। स्टीफन स्पेंडर वाज अ फेमस इंग्लिश पोएट। हुआ क्या, एक बार जो अशोका मित्रा थे, ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का एक छोटा सा कॉलम था, उसमें एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट आया हुआ था। देयर वॉज एन एडवर्टीजमेंट अबाउट शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट, और नरेटर को लगा कि चलो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो नरेटर, बिफोर स्पेंडिंग मनी फॉर पार्टिसिपेशन, he decided to study, he decided to search the source of the newspaper or of the contest. So he the encounter a literary magazine when he went to the library, और उसने सोर्स ढूंढा कि फ्रॉम विच सोर्स दिस कॉन्टेस्ट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। द एनकाउंटर, ये मैगजीन का नाम है, द एनकाउंटर, दिस मैगजीन वॉज ऑर्गेनाइजिंग ए शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट। और इस स्टोरी के, इस मैगजीन के जो एडिटर थे उनका नाम था स्टीफन स्पेंडर। जस्ट एज अशोका मित्रा heard or read the name of Stephen Spender, suddenly he realized and recalled कि he was the same man who had visited Gemini studio. इसका मतलब अब स्टीफन स्पेंडर की जो मिस्ट्री थी वो अनफोल्ड हो गई कि अच्छा, तो हमारे जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने इनको इनवाइट किया था, हु इज एन एडिटर। एनीवे ही पार्टिसिपेटेड but he could not get anything, and after many years when Ashoka Mitra lost his job, now he was free. So one day he was passing on the road and suddenly he found a magazine, एक छोटी सी बुक थी, तो उन्होंने वो बुक बाय कर ली बिकॉज इट वाज वेरी इकोनॉमिकल एंड इट वाज स्पेशल स्टूडेंट्स एडिशन। उसमें 6 प्रोमिनेंट राइटर्स के एस्से थे। टाइटल था गॉड दैट फेल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में जरूर आएगा आपके। गॉड दैट फेल्ड। आउट ऑफ क्यूरोसिटी अशोका मित्रा बॉट द बुक, जिसमें 6 प्रोमिनेंट राइटर्स के एसेज दिए हुए हैं, और जब उसने पेजेस को फ्लिप किया, एक एसे उसमें स्टीफन स्पेंडर का भी था अबाउट कम्युनिज्म। इसका मतलब स्टीफन स्पेंडर नाउ नॉट एन अननोन फिगर फॉर अशोका मित्रा। पहली बात, व्हेन स्टीफन स्पेंडर हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, तब उसके लिए वो मिस्ट्री था, लेकिन व्हेन ही हैड सीन हिज नेम एज एडिटर ऑफ द मैगजीन एनकाउंटर, मिस्ट्री अनफोल्ड हो गई कि ओके ही इज स्टीफन स्पेंडर। और आज तीसरी बात, जब उसने राइटर का एसे पढ़ा तो उसको क्लियर हो गया कि स्टीफन स्पेंडर वाज ए नॉन फिगर। नाउ व्हाट इज गॉड दैट फेल्ड? ऐसा था, पहले जो लोग थे वो कम्युनिज्म को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मानते थे। जो लोग थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉइंट्स, दे वर अगेंस्ट कम्युनिज्म। तो वो कम्युनिज्म को पॉजिटिव मानते थे, अच्छा मानते थे, लेकिन 6 राइटर्स ने, जो शायद खुद भी कम्युनिज्म को पहले अच्छा मानते थे, गॉड मानते थे, उनको लगा कि नहीं, इट वाज ए रॉन्ग पिक्चर, इट वाज ए हेजी पिक्चर, एंड दे रॉट अगेंस्ट कम्युनिज्म। जो कम्युनिज्म उनके लिए गॉड था, उनको रियलाइज हुआ कि ये गॉड नहीं है, तो वो गॉड फेल हो गया। गॉड दैट फेल्ड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि जिस चीज को राइटर्स या लोग पहले अच्छा मानते थे, गॉड लाइक मानते थे, अब उनको रियलाइज हुआ कि कम्युनिज्म पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव है, तो इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। तो व्हेन दे केम आउट फ्रॉम द इल्यूजन, उन्होंने कम्युनिज्म के नेगेटिव पॉइंट्स लिखे, और टाइटल क्या बना? गॉड दैट फेल्ड। गॉट इट फ्रेंड्स? कोई शक? You can go through this chapter, and if still you face any doubt, you can discuss in the comment. Bye bye.